One, sorry. Okay, welcome to our last class on the subject of daily devotion and holiness. और आज का जो दैनिक भक्ति के विषय और पवित्रता का जो कोर्स है उसके आखिरी क्लास में आपका स्वागत है। So we studied about daily devotion हमने दैनिक भक्ति के विषय में सीखा and now we are studying about holiness. और अब जो है पवित्रता के विषय में हम सीख रहे हैं। We are in chapter 6 हम 6वें अध्याय में हैं, 6वें पाठ में हैं and we were looking about the whole process of sanctification yesterday. कल देख रहे थे कि पवित्रीकरण का पूरा जो तरीका है उसके विषय में। So when we become new creation in Christ, और जब हम परमेश्वर में नए सृष्टि बन जाते हैं we are all, God already sanctifies us, परमेश्वर हमें पवित्र कर देता है, which means जिसका मतलब है which means we are already made perfect. जिसका मतलब है कि हम पहले से ही पूर्ण किए गए हैं, We are already made complete. हमें पूर्ण रीति से परिपूर्ण किया गया है। We are already consecrated to God. हमें परमेश्वर के लिए अलग किया गया है And there's nothing lacking before God. और परमेश्वर के सामने किसी चीज की भी कमी नहीं है। So that is our positional truth. वो है हमारी स्थापित होने की सच्चाई। Isn't that wonderful? क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है That, you know, God thinks so much about us. कि परमेश्वर हमारे बारे में इतना ज्यादा सोचता है। When all we have to say is yes to salvation, इतना ही हमें करना है कि हमें पर उद्धार के प्रति हाँ कहना है। all we need to do is say, yes, God, please forgive me, I'm a sinner. इतना सिर्फ हमको कहना है कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, And accept him into our lives. और हमारे जीवन में उसको स्वीकार करना है And the abundance of blessings that we receive. और उसमें से मिलने वाली अपार जो अनुग्रह है। We are made righteous, that means we are in right standing with God. हमें धार्मिक बनाया गया है क्योंकि हमें धार्मिकता की ओर खड़ा किया है। We become children of God. हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। We receive all the spiritual blessings. हम उसकी आत्मिक अनुग्रहों को प्राप्त करते हैं। We are no longer enemies of God. हम अब परमेश्वर के से शत्रुता में नहीं है। And we are already made justified, made righteous and sanctified. हमें न्यायीकरण किया गया, हमारा धार्मिक बना दिया गया और पवित्र बनाया गया है। And there is actually nothing lacking in us before God. और परमेश्वर के सामने हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है। Everything is completed. और सब कुछ संपूर्ण किया गया है। So everything is completed in the spiritual realm. और आत्मिक तल में सब कुछ पूर्ण किया गया है। But we need that, and that this is all our positional reality or who we are, the positional truth of who we are. और हम परमेश्वर में कौन है ये जो सच्चाई है। So this is our positional truth. हमें इस प्रकार से परमेश्वर ने इस सच्चाई के अनुसार स्थापित किया है। But we need to live that out in a practical way. हमें व्यावहारिक रीति से उसको जीना भी है। So there are two aspects when it comes to our life of salvation. दो बातें आते हैं जो उद्धार के जीवन के विषय में है। One is, you know, that we are already made righteous, we are already justified, we are already sanctified. पहला है कि हमें न्याय किया गया है, हमें शुद्ध किया गया है, हमें धार्मिक बनाया गया है और हमें पवित्र किया गया है। That is our positional truth. वो हमारी खड़े होने का सच्चाई, Or that is our where we stand. वो है जगह जहां पर हम खड़े रहते हैं दृढ़ता के साथ। But we need to live out all of this in practical aspects in our life every day. और वास्तविक रीति से हमें इस सारे चीज सच्चाई के अनुसार जीने की जरूरत है। When we do that, हम जब वैसा करते हैं, what Jesus has done for us on the cross, or what is our positional truth in the spiritual realm, becomes a reality in the physical realm. और जो आत्मिक तल में जो सच्चाई है वो हमारे वास्तविकता में पूर्ण हो जाता है। So yes, we are already made righteous, we are sanctified, but we need to live
that out every day in our lives. सच है कि हमें धार्मिक बनाया गया है, हमें पवित्र बनाया गया है, लेकिन हर एक दिन में हमें उसको जीना है। So that is why the Bible says, work out your salvation with fear and trembling. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके उद्धार को भय और भक्ति के साथ काम में लाएं। We also saw yesterday, we read Hebrews chapter 10, verses 10 and 14. हमने इब्रानियों की किताब 10 और से 14 तक कल हमने देखा था। In verse 10, it says, we have been sanctified. उसमें 10वें पद में लिखा गया है कि हमें पवित्र बनाया गया है। And in verse 14, it says, those who are being sanctified. Sound broke. The mic broke. It says in verse 10 that we have been sanctified. You can say that. और 10वें पद में लिखा हुआ है कि हमें पवित्र बनाया गया है। And in verse 14, it says that we are being sanctified. और हमें उसमें 14वें पद में लिखा हुआ है कि हम ऐसे एक We are being sanctified every day. और हर दिन जो है हमें पवित्र किया जाता है। So there are two aspects. वहां पर दो तत्व है। We are already made sanctified हमें पहले से ही शुद्ध किया गया, पवित्र बनाया गया when we accept Jesus Christ. जिस दिन हमने यीशु को उद्धार करता स्वीकार किया। But we are also being perfected. We are also being made sanctified every day. It's a process. हमें जो है पूर्णता में लेकर आए हैं और एक हर दिन की कार्य प्रणाली के समान हमें पवित्र किया जाता है। And we are being perfected every day. और हमें हर दिन पूर्ण किया जाता है। So do you understand that now? अभी उतना समझ में आ गया आप लोगों को? Yes? No? Okay. So we look at some practical areas हम कुछ व्यवहारिक कार्यों को देखेंगे where God's holiness is touching us in those areas of our lives. और वो पवित्रता जो परमेश्वर का है वो हमारे जीवन के क्षेत्रों में जो हमें स्पर्श करता है, छूता है। So the Holy Spirit पवित्र आत्मा and God और परमेश्वर is sanctifying us in these areas of our life. इस क्षेत्र हमारे जीवन के क्षेत्रों में वो हमें शुद्ध करता है, नहीं तो पवित्र करता है। He's sanctifying us in our minds and in our bodies. वो हमारे मन में और शरीर में हमें पवित्र या शुद्ध करता है। He's sanctifying our thoughts, our words and our deeds. और हमारे चिंताओं को, हमारे कामों, Not chinta, thoughts. विचारों को और शब्दों को और शब्दों में हमें और पवित्र करता है। हम जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, He sanctifies us in those areas. और उस काम करने के क्षेत्र में हमें वो शुद्ध करता है, पवित्र करता है। So we need to be careful the kind of things we watch and the kind of thoughts we have in our mind. और इसलिए हमारे मन के अंदर हमें ये ध्यान रहना है कि हम क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं। We need to be very careful in these areas. हमें बहुत ही सचेत रहना है इस क्षेत्र में। We need to be careful in the kind of words we say. और किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं हमें बहुत ध्यान देना है। And also in our actions. और हमारे कामों में Our thoughts, our words, our actions must all be pleasing, acceptable and glorifying God. और जो हमारा शब्द है, हमारा कार्य है, हमारा विचार है, ये सब जो है परमेश्वर के को स्वीकृत होना चाहिए। And उनको महिमा देना चाहिए. In all of these areas, we need to glorify Him. और ये सारा हमारा जो क्षेत्र है वो परमेश्वर को महिमा देने लायक होना चाहिए। The second area where God and the Holy Spirit sanctifies us दूसरा जगह जहां पर पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, is in our desires, our affections and our passions. और वो है हमारी इच्छा, हमारा स्नेह और हमारा जुनून। If you look at 1 Thessalonians chapter 4 verses 3 to 8, अगर हम पहला थिस्सलुनीयों उसका 4 का 3 से 8 में देखेंगे, it says there that it's God's will to sanctify us. उसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो And we should abstain from sexual immorality. और अर्थुत व्यभिचार से बचे रहो।
In verse 5, it says, not in the passion of lust, और इस जगत के और तुम में से हर एक पवित्र और आदर के साथ, please read verse 5. आई एम रीडिंग बट दैट इज, Oh, okay. और आदर के साथ अपनी पत्नी, No, what Oh, about that's right. passion? पांचवा, ओके, और यह काम अभिलाषा से नहीं, या अभिलाषा से नहीं, और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं So जानती, you should not live in lustful passions. और अभिलाषा या अभिलाषा के अनुसार नहीं जीना है. And also verse 7, it says, God did not call us to uncleanliness, but to holiness. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है. छठवां पद. So though these are the areas about, our passions, our affections, our sexual affections, our passions, our desires should be all holy and glorify God. और हमारे शारीरिक अभिलाषाएं जो है और सोच विचार जो है, ये सारे क्षेत्र है जहां पर हमें पवित्र होकर रहना है. The third one is sanctification in our dreams, our hopes, and our aspirations. और तीसरा है हमारे सपने में, हमारे आशाओं में और हमारे आकांक्षाओं में पवित्र किया जाना. In Matthew chapter 6 verse 33, मत्ती रचित सुसमाचार 6:36 में God says, Jesus says, यीशु मसीह ऐसा कहता है, seek first the kingdom of God and his righteousness. पहले स्वर्ग परमेश्वर की राज्य की खोज और धार्मिकता की खोज करो, And all these things will be added to you. और सब कुछ तुम्हारे लिए जोड़ दिए जाएंगे. But what do we seek first? लेकिन हम क्या पहला ढूंढते हैं? We seek our basic needs, yes. हम अपनी जरूरतमंद बातों को पहले खोजते हैं. We don't seek God's kingdom first. हम लोग जो है परमेश्वर के राज्य को पहले नहीं खोजते हैं. But if you want all your basic needs to be met, और हम अगर अपनी सामान्य चीजों को अगर पूरा करना है, or if you want, all of your daily needs to be met, और प्रतिदिन की आवश्यकता अगर हमें पूर्ण होना है, or you want the needs in your life to be met, और हमारे जीवन की जरूरतों को अगर पूरा होना है, then you need to seek. What should you do first? हम पहले क्या करना है? You need to seek the kingdom of God first. हमें पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करना है. So tell your neighbor, seek God's kingdom first. पहले आपके पड़ोस में बैठे हुए वाले को बोले, पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करें. When we seek God's kingdom, जब हम परमेश्वर की राज्य की खोज करते हैं, God will meet all of our needs. और परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा. Amen. Amen. The fourth one, चौथा, that is, the Holy Spirit sanctifies us, sanctifies our time, talents, and money. और हमारे जो परमेश्वर, चौथा जो है परमेश्वर हमारा समय, प्रतिभाएं और पैसे को पवित्र करेगा. God desires परमेश्वर इच्छा रखता है that we glorify Him in the time that we spend. और जो समय हम व्यतीत करते हैं उसमें परमेश्वर को महिमा दें. So we need to ensure that we don't waste our time. हमें ये ध्यान देना है कि हम अपने समय को व्यर्थ ना करें. Did you know that you are going to be accountable to God for the time that you spend? क्या आप जानते हैं कि आपको एक लेखा चुकाना पड़ेगा आपका जो समय व्यतीत करते हैं? Tell your neighbor, God is going to hold you accountable for the time you spend. अपने पड़ोसी से बोलें, जो आप समय को बिताते हैं उसके लिए परमेश्वर आपसे लेखा जोखा पूछेगा. So since God is interested in sanctifying our time, जब परमेश्वर हमारे समय को पवित्र या शुद्ध करने में इच्छुक है, our talents, our money, और हमारा कौशल और जो है और पैसा जो है, we need to glorify Him in the way we spend our time. और हमें परमेश्वर को महिमा देने की जरूरत है
किस प्रकार से हम अपना समय को व्यतीत करते हैं। So if you're spending a lot of time just sitting and gossiping and talking or watching TV or YouTube, you're wasting your time. अगर आप ज्यादा से ज्यादा समय बिना किसी काम के बैठे रहना या इधर उधर की बातें करना, टीवी को देखना, यूट्यूब देखना करते हैं तो व्यर्थ है। Don't say that मैं YouTube पे आराधना की गाने सुन रहा हूँ 1 घंटे तक, I am praising God. और ऐसा ना बोले कि YouTube में जो आराधना की गीत हैं उसको मैं सुन रहा था और परमेश्वर की स्तुति कर रहा था 1 घंटे से। It's okay if you're really worshiping God. अगर आप सही रीति से आराधना में थे तो ठीक है, But if you're just doing it to waste your time, then it's of no use. अगर उसकी जगह पर अगर आप अपने समय को खर्च करने के लिए कर रहे हैं तो वो गलत है। God has given all of us talents. और हम में से सब लोगों को परमेश्वर ने जो है प्रतिभाएं नहीं तो कौशल दिया हुआ है। It doesn't mean talents doesn't mean just to teach or preach. कौशल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाएं या प्रचार करें। It doesn't mean just leading worship or playing some instruments. किसी संगीत वाद्य को बजाना या आराधना को अगुवाई करना नहीं है। Your talents can also be praying. आपका प्रतिभा हो सकता है आप प्रार्थना करते हैं। Or your talent can be, cooking or cleaning the house. आप खाना पकाने में, घर सफा करने में कौशल होगा आपको। Or you're talented in doing some job. That's why you have got a job and you're working in that field. और उस एक क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं क्योंकि उस क्षेत्र में काम करने के लिए आपको कौशल प्राप्त हुआ होगा। Maybe you're good at stitching or drawing or art, painting, whatever. आप सिलाई करने में, चित्र बनाने में, ये सब चीजों में कौशल आपको प्राप्त होगा। In all the ways that all the talents that we have, we need to glorify God. और जो कुछ कौशल या प्रतिभा हमको मिला है उस सारी चीजों में परमेश्वर की महिमा करना जरूरी है। And use that to bless other people. और वो कौशल को दूसरों को सहायता के लिए इस्तेमाल करें। God is interested in sanctifying the way we use our money as well. और परमेश्वर जो है हमारे पैसे के विषय को भी पवित्र या शुद्ध करने में रुचि रखता है। So how do we honor God with the way we spend our money? और किस प्रकार से हम परमेश्वर को सम्मान दे सकते हैं हमारे पैसे के विषय में? Okay, giving your tithes, okay? भेंट Please put your चढ़ाना, hand up. दशमांश देना। अपना हाथ उठा ले जो भी बोलना चाहते हैं। Yes. हाँ, आपने हाथ उठाया ना? Okay. Yes. Okay, give people, help people who are poor and needy, okay? तो वो लोग जिनको सहायता की जरूरत हो उनको पैसा देना। Saving and investing, okay? Yes, God is interested in us saving money and also investing. और सही जगह पर लगाना और सही रीति से उसको जोड़ कर रखना। Okay, sowing seeds, that means giving into the kingdom of God, blessing the kingdom of God. परमेश्वर Yes. के राज्य में उसको बोना। So, no, yes. Yes. It's important that you plan how to use your money. किस प्रकार से आप उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी योजना बनाना जरूरी है। कुछ लोग को ना टंका मिल जाता है, पहले 5 दिन में पूरा खत्म। Yes, you need to plan how to use your money. Yes. Huh? ईमानदारी, yes, you need to be honest and there should be integrity in how you spend your money. Yes. आपके पैसे के विषय में ईमानदार रहना। Okay. The 5th one is God sanctifies our families, our homes and our possessions. और 5वां पॉइंट अंक जो है हमारे परिवार, घर और संपत्ति को पवित्र परमेश्वर पवित्र बनाता है। So God is interested in how we look at marriage and he wants us the marriage relationship to be holy. और वो परमेश्वर देखता है कि हमारा शादीशुदा जीवन जो है पारिवारिक जीवन कैसा है। He wants us to be sanctified in that area. वो हम उस क्षेत्र में पवित्र देखना चाहता है। He wants us to nurture our children so that they can also be sanctified. वो हमारे बच्चों को पोषित करना चाहता है ताकि वो भी शुद्ध रहें या पवित्र रहें। Our homes.
हमारा घर and all our earthly possessions. और जो कुछ हमारी इस धरती के संपत्तियां हैं उसको भी परमेश्वर पवित्र बनाकर रखना चाहता है। In every way, He wants us to glorify Him. और पूर्ण रीति से परमेश्वर जो है सब चीजों को शुद्ध और पवित्र बना के रखना चाहता है। So these are the areas where, God is looking to sanctify us. ये सारे क्षेत्र हैं जहां पर परमेश्वर ये खोज में रहता है कि उसको पवित्र बनाएं। So we also need to be vigilant in these areas and live a life that's holy and glorifies God in these areas. और ये सारे जगहों पर हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है ताकि वो पवित्रता के अनुसार रहे। Amen? आमीन। Okay. Can you just look at that list, please, again? और All of you? एक और बार उस सूची को अगर आप देखें, Can you write in the side areas where you think that you need, you need sanctification? क्या वो सूचियों के बगल में आप लिख सकते हैं अपने आप से कि कौन से क्षेत्र है जिसमें आपको एक शुद्ध होना है, वो क्षेत्र आपका, या पवित्र किया जाना है? Yes. यहाँ 5 लिखा है, 5 में भी सब पॉइंट्स है, जैसे अफेक्शंस, डिजायर्स, माइंड, बॉडी, ड्रीम्स, होप, एस्पिरेशंस, टाइम, टैलेंट्स, मनी, family, home, possessions. So all of these areas you write down which areas you have to be sanctified in. और यहाँ पर कई कुछ सूचियां लिखे हुए हैं, मन, परिवार, पैसा, समय, ये सब, इन सब में आप लिखें Desires, इच्छाएं, affections, passions. स्नेह, So write down the areas जुनून, where you need to be sanctified इन in. सब के एरिया में, इन सब के क्षेत्र में आप लिखें, उसके सामने कहां पर आप सोचते हैं कि आपको पवित्रता की जरूरत है, उस क्षेत्र में परमेश्वर शुद्ध करने की जरूरत है। जल्दी लिख लीजिए प्लीज। The meantime, anyone has any questions? और लिखने के दौरान किसी को अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बाकी लोग जब लिख रहे हैं, जिन लोगों ने लिख लिया वो लोग सवाल पूछ सकते हैं। Any questions? Good question. बहुत अच्छा सवाल। He's saying that God, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, भाई बोलते हैं कि जब यीशु मसीह को हम उद्धार कर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, we are already sanctified. हम जो है पहले उसी समय शुद्ध किए गए हैं, पवित्र बनाए गए We are हैं, already made righteous. हमें धार्मिक भी बनाया उसी समय। So we continue. We are human. We continue to sin. हम मनुष्य हैं तो गलतियां करते हैं, हम पाप करते हैं। So when we sin, will our names be removed from the book of life? और जब हम वो पाप करें तो क्या हमारा नाम जीवन की किताब से हटा दिया जाएगा? हटा जाएगा क्या? No, it won't be removed from the book of life. उसको लिखा, मतलब जीवन की किताब से आपका नाम हटाया नहीं जाएगा, उधर ही रहेगा, वहीं रहेगा। But what do we do when we continue sinning? लेकिन हम क्या करते हैं जब हम निरंतर पाप करते रहते हैं? We'll study about that. हम सीखेंगे उसके विषय में। Good question. Anyone else has any questions? अच्छा सवाल। और किसी के पास कोई सवाल? Yes. Rapture is not yet happened, Margaret. Yes. Yes. Yes, all those who accept Jesus will be written in the book of life, and they will only be raptured. Yes. Yes. Yes, because you have accepted Jesus and you have received eternal life. Okay. Yes.
So 1,000-year period, yes. Yes. Yes, those who are born during the millennium period, वो लोग जो उस 1000 साल के राज्य के समय पर जन्म लेते हैं, yes, and they would, they would obviously they will be living under the rule and reign of God because He Himself will be present. और परमेश्वर खुद वहां पर रहेगा, तो उसका राज्य और शासन के अंदर अधीन होकर रहेंगे वो लोग। But when Satan is released, God, yes, he will again tempt those people, and God, will see who stands for him till the end. और उसको जब फिर से पुनः छोड़ दिया जाएगा शैतान को, तब वो फिर से लोगों को परीक्षित करेगा। तब परमेश्वर दिखेगा कि कौन अंततः तक वो विश्वस्त रहेगा, भरोसेमंद या रहेगा। So there will be names will now obviously be removed. Even now, if you act just for the sake of saying I received Jesus Christ and pray that salvation prayer, but you've not really, accepted Him as your Lord and Savior, then. और आप नाम के लिए ही यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और उस पापी प्रार्थना को करते हैं, लेकिन सही मायने से आपके हृदय में वो नहीं बदला हुआ, तो So it's not for us to know who will be in the book of life and not. We can't really say, but yes. Your name will be there, surely. If you have accepted Jesus and you continue to live, you need to have that faith, your name will be there. और अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है उद्धारकर्ता के रूप में, तो जरूर आपका नाम रहेगा। आप और आश्वस्त रहें कि आपका नाम रहेगा। Anyone else? Any questions? और कोई? बाद में? Okay. We'll move on to online students. Any questions? Thomas, Sharon? ऑनलाइन में जो हमारे साथ जुड़े हैं, शैरन और थॉमस भाई। Okay, let's move on to chapter 7. 7वें अध्याय की ओर हम बढ़ेंगे। We will look how we can be perfect in holiness. हम देखेंगे कि पवित्रता को कैसे सिद्ध करें। So we'll try to answer this question. How does God help us to perfect in holiness? और हम ये सवाल का जवाब देंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर करता है कि हम सिद्ध हो जाएं। Yes, we are made new creation in Christ. हमें जो है परमेश्वर ने एक नया सृष्टि बनाया है। And there is all kinds of sin that attracts us. और सारे प्रकार के पाप जो है हमें उसकी ओर खींचता है। There are a lot of sinful things that are in this world that attract us. और इस दुनिया में कई पाप की बातें हैं जो हमें उसकी ओर आकर्षित करते हैं। But we need to constantly keep on guard. लेकिन हमें निरंतर अपने आप को सुरक्षित रखना है। And we need to keep our mind, our spirit, soul and body perfect and holy before God. और हमें आत्मा, प्राण और देह को परमेश्वर के सामने शुद्ध करके या पवित्र करके रखना है। And it's not something that we need to do in our own strength. ये ऐसा नहीं है जो हम अपनी बल पे कर सकते हैं। The Holy Spirit is there to help us. और पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करेगा। So we look at how does God perfect holiness in our lives. और हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है उसकी पवित्रता को हमारे में सिद्ध करता है। So what are the two main things that God uses to perfect or bring about holiness in our lives? और दो क्या तत्व है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें पवित्रता में सिद्ध करता है। शुद्ध करता है, सिद्ध करता है। What is siddh? सिद्ध is perfect. Holy, makes us holy. पवित्र करता है। हाँ? The blood of Jesus, what are the two things? दो तत्व क्या है? हाँ? Yes, बोलिए। शरीर और आत्मा को कैसे पवित्र करता है परमेश्वर? परमेश्वर दो शरीर चीज और को आत्मा, क्या यूज करते हैं? शरीर और आत्मा को परमेश्वर, शरीर को लहू के द्वारा, Yes, the word of God, yes. परमेश्वर का वचन, The word of God cleanses us and washes us. परमेश्वर की वचन जो है हमें शुद्ध करता है और हमें
धोता है। And what else does God use to cleanse us and purify us? और कौन सी ये कार्य बात है जो जिसके द्वारा परमेश्वर हमें शुद्ध करता है या पवित्र करता है? Who else sanctifies us? और कौन है जो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है? The Holy Spirit. Yes, it's the Word of पवित्र God आत्मा। and the Holy Spirit. वचन, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा। So God works in us by the power of His Word. परमेश्वर के वचन के द्वारा वो काम करता है। He also works through us the power of His Holy Spirit. और उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा भी। And also He uses His divine disciplines in our life, in dealing with us and disciplining us. और अनुशासन में दिव्य ईश्वरीय अनुशासन के द्वारा वो हम में पवित्रता को उत्पन्न करता है। The two main things is the Spirit and the Holy Spirit and the Word. दो चीज है जो है परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा, जो महत्वपूर्ण है. And then the other thing is He also brings about divine disciplinary actions in our lives to sanctify us. ये दोनों जो है पवित्र आत्मा और वचन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ में ये परमेश्वर जो है ईश्वरीय अनुशासन को हमारे जीवन में लाता है। So how are we empowered by the Spirit of God for holiness? और हम पवित्रता की आत्मा में समृद्ध कैसे होते हैं? So how does the Holy Spirit empower us to be holy? किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमें समृद्ध करता है कि हम पवित्र हो जाएं? Now the Holy Spirit is the spirit of holiness. पवित्र आत्मा जो है पवित्रता की आत्मा है। We read this in Romans chapter 1 verse 4. हम ये देखते हैं रोमियो की पत्री 1:4 में। And Romans chapter 15 verse 16 says the Holy Spirit sanctifies us. और रोमियो की पत्री 15:16 में कहा जाता है कि वो परमेश्वर जो है हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। पवित्र आत्मा हमको शुद्ध करता है, हमको पवित्र करता है. So His Holy Spirit is a spirit of holiness. पवित्र आत्मा जो है पवित्रता की आत्मा है। And also the Holy Spirit is the one who sanctifies us. और पवित्र आत्मा वो है जो हमें शुद्ध और पवित्र बनाता है। And it's the Holy Spirit that empowers us to holiness. और वो हमें समृद्ध करता है कि हम पवित्रता की ओर बढ़ें। He empowers us to walk in holiness. वो हमें समृद्ध करता है कि हम पवित्रता में चलें। And thus He helps us to reproduce the holiness of God in and through our lives. और हमारे जीवन के अंदर से वो पवित्रता को उत्पन्न करने के लिए पवित्र आत्मा हमें समृद्ध करता है। Remember I told you the day before yesterday? परसों के दिन आपको एक बात बताया था, क्या आपको याद है? We said when we have an understanding of the revelation of God, परमेश्वर के प्रकाशन के विषय में जब हमको समझ आता है, what does it lead us to do? वो हमें किसकी ओर लेकर चलता है? No, किसकी ओर no. What does the result of it? और उसका फल क्या है? परिणाम क्या है? परिणाम When we receive a revelation of God, of the nature of God, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जब हम प्रकाशन प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है? हम में क्या होता है? तब हमारे जीवन में क्या होता है? It leads to what? वो It leads to what? किस बात की ओर अगुवाई करता है? We said that revelation leads to all that leads to holiness. Yes, but what? Okay, what does the knowledge of God do? परमेश्वर का ज्ञान क्या करता है? I'm looking for which page. In page number 14 it's there. In the English, page number 14, chapter 4 शुरू के में है. Chapter 4 पाठ 4 के आरंभ में लिखा हुआ है। Ephesians 1:17 के बाद, वो वाक्य के बाद है. एफिसियों की पत्री 1:17 के बाद है। चैप्टर 4 में आपके नोट्स में 14, पाठ नंबर 14, पेज नंबर 14, सॉरी हिंदी में
पार्ट नंबर आप 14 देख लेना, 4 पार्ट निकालिए नंबर ना। 14 में देख लीजिए आप। 17 पेज नंबर 17 पार्ट नंबर 4। और उसमें 16 देखिए, 16 का 4। 16 नहीं, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। हाँ 17 में देखिए, 17 ऊपर में देखिए, ऊपर ऊपरी भाग में क्या लिखा है, सब लोग पढ़िए अपने आप, पहला क्या लिखा है, अपने आप सबसे पढ़िए पहले प्लीज, एवरीवन रीड इट। सब लोग पढ़िएगा। सब लोग पढ़ लिए? So what happens when we receive the revelation of the nature of God, when it comes into our heart, what happens? हमारे हृदय में परमेश्वर का स्वभाव का जो प्रकाशन होता है तो क्या होता है? There is a response, yes. हम जो- We respond towards his nature. उसके स्वभाव के प्रति प्रतिकरण करते हैं हम, And then what happens? We discover और उसके बाद हम ये ढूंढ निकालते हैं that God invites us to reproduce that nature in us. और परमेश्वर वो हमें ढूंढ लेता है ताकि हम उसके स्वभाव को पुनर्उत्पन्न कर सकें, And so that his nature is revealed through us. ताकि उसका स्वभाव जो है हम में से होके दिखे। So please सब लोग वो अपने notes में मार्क जो चार पद है, 4 पाठ का जो है 4 5 में जस्ट एफिशिएंस 1:17, उसके बाद जो 3 पैराग्राफ है उसको प्लीज पढ़ लीजिए और अंडरलाइन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सबको मिला? अंडरलाइन कर दिया सब लोग? वो पढ़िए, वो भाग जो है आप पढ़ दैट्स लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत ही जरूरतमंद बात है। एफेसियों की पत्री उसमें जो 1:14 लिखा है, वो जो पद दिया हुआ है उसके पद के नीचे जो दिया हुआ पैराग्राफ है आपका, पैराग्राफ इसमें, हाँ इसमें 3 पैराग्राफ जो दिया है, पहला सबसे पहला स्टार्टिंग पैराग्राफ सबसे पहले, दूसरा पैराग्राफ उसके स्वभाव, तीसरा पैराग्राफ परमेश्वर की हमारी। 3 पैराग्राफ को आप जरूर ध्यान पूर्वक पढ़ लें और उसको आप जो है मार्क कर लें। आपके पास अगर मार्कर है तो मार्क कर लें, पेन पेंसिल है तो उसको पेन पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हम एक मसीही जीवन के लिए। So what is it saying here? Once we receive a revelation of the nature of God, एक बार जब हम उस परमेश्वर के स्वभाव का जो प्रकाशीकरण हम प्राप्त कर लेते हैं, we naturally respond to that nature. और हम जो है उसकी ओर प्रतिक्रिया करते हैं। And then we discover that God invites us. हम तब खोज पाते हैं कि वो हमें न्योता देता है उसकी स्वभाव की ओर। परमेश्वर gives us, God gives us, invites us, yes. That's what it said. न्योता देता है। Okay. To reproduce that nature in us, ताकि वो स्वभाव को पुनरुत्पन्न कर सकें। that nature should be reproduced in our lives. हमारे जीवन के अंदर उस स्वभाव, उस परमेश्वर के स्वभाव को पुनरुत्पन्न करना है। Why? क्यों? So that we can reveal him on this earth. ताकि हम उसको इस धरती पर लोगों के सामने दिखा सके। So why you have come to Bible college and why are you studying all of these courses? आप बाइबल क्लास में, कॉलेज में क्यों आए और ये पाठों को क्यों पढ़ रहे हो? Because God is giving you a revelation of his nature. तो क्योंकि उसके परमेश्वर के स्वभाव का आपके जीवन में वो एक प्रकाशन दे रहा है। And he is looking for a response. और वो एक प्रतिक्रिया को देख की उम्मीद में है। And he is expecting a response from each one of you. और हम में से हर एक व्यक्ति के अंदर से उसके प्रति एक प्रतिक्रिया की उम्मीद में है। And he is also looking forward and inviting you for that nature to be reproduced in you. और वो ये भी देख में बैठा हुआ है कि उसकी स्वभाव जो है हमारे अंदर से पुनर्उत्पन्न हो।
and his nature be revealed in us. और हमारे द्वारा उसका स्वभाव दिखाया जाए। So this is what God's plan is for you. ये है परमेश्वर का योजना आपके विषय So में। all that God has done in your life, जो कुछ आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है, or all that God has purchased for you on the cross of Calvary, और कलवरी क्रूस कर जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए खरीदा है, whether it's salvation चाहे वो उद्धार हो, or righteousness, धार्मिकता हो, sanctification, पवित्रता हो, justification, न्यायीकरण हो, atonement, और atonement. प्रायश्चित हो, He's looking for a response. वो एक प्रतीकरण के लिए उम्मीद में है। So that response, will be that will lead to a reproduction of his nature in you. वो ये सारे कार्य जो है उसका स्वभाव आपके जीवन के अंदर से पुनर्उत्पन्न करवाएगा, So that you can reveal him. ताकि आप उसको प्रकट कर सकें। So that is why God is imparting holiness to us. इसीलिए परमेश्वर जो है हमारे अंदर से एक पवित्रता को उत्पन्न करता So है। when we live in holiness, जब हम पवित्रता में रहते हैं, when we walk in holiness, जब हम पवित्रता में चलते हैं, we can reproduce holiness, हम जो है पुनर्उत्पन्न कर सकते हैं पवित्रता को, and people can see his holiness in us. और लोग जो है हमारे अंदर वो पवित्रता को देख सकते हैं। So the Holy Spirit is the one who enables us, और पवित्र आत्मा है जो हमें उसके प्रति वो बनाता है, योग्य बनाता है, to crucify the sinful deeds of the body, ताकि हमारे शारीरिक पाप के शारीरिक स्वभावों को, शरीर को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया जा सके। No, he helps us to crucify, no, you said. The crucify our sinful means be dead to the things of the flesh, to be dead to sin, to crucify the sinful deeds of our body. और ताकि हम जो है हमारे पाप के स्वभाव को मार सके। Yes, so that we are not alive to the things of the flesh, ताकि हम शरीर के पापों के प्रति जीवित ना हो, so that we can be dead to the things of this world. ताकि हम इस दुनिया के चीजों के प्रति मृत्यु में हो। We can do that when we walk in the Spirit. और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा में और पवित्रता में चलते हैं। And when we walk with the Holy Spirit, हम जब पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, when we are yielded to the Holy Spirit, हम जो उसकी तरफ उत्तर देने लायक होते हैं, and when we are, we don't fulfill the desires of the flesh. और हम हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को जब हम पूरा नहीं करते हैं। Yesterday, remember, we learned that the power of sin is broken over our body. और कल याद होगा आपको, हमने सीखा था कि पाप का जो शक्ति है तोड़ा गया था। Yes or no? हाँ या ना? When Jesus died on the cross, he broke the power of sin. और यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर मृत्यु प्राप्त किया, उसने पाप की शक्ति को तोड़ दिया था। So we think, okay, God has already broken the power of sin on the cross. हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने तो पहले से ही वो पाप की शक्ति को तोड़ दिया है। Then why does sin reign in my body? फिर भी हमारे शरीर में वो पाप का स्वभाव क्यों राज्य करता है? Why can't I control certain sins in my body? क्यों नहीं मैं अपने शरीर में कुछ पाप के स्वभाव को नियंत्रण में रख सकता हूँ? That's because we are not walking with the Spirit. इस कारणवश वो नहीं होता क्योंकि हम पवित्र आत्मा में नहीं चल रहे We are हैं। not yielded to the Spirit. हम जो है उसके आधारित पर नहीं हैं। What is the meaning of walking with the Spirit? पवित्र आत्मा के साथ चलने का मतलब क्या है? Yeah, to be led by the Spirit, to come, be with Him always. उसके साथ हमेशा रहना और उसके द्वारा मार्गदर्शित कराया जाना। When we walk with the Spirit and we are yielded to the Spirit, हम जो उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं और उसकी आत्मा के प्रति मतलब आकर्षित रहते हैं, we will not fulfill the desires of the flesh. और हम जो है हमारी शरीर की अभिलाषाओं को
पूरा नहीं करेंगे। When you need strength and help to overcome the things of the flesh or the sinful nature, जब हमें हमारे पाप में या शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने की जरूरत पड़े, ask the Holy Spirit पवित्र आत्मा से मांगे and ask Him to help you overcome it. और उस प्रणालियों के ऊपर विजय पाने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता पूछें। We'll take a break and come back. हम लोग एक ब्रेक लेंगे और 4-5 को वापस आ जाएंगे, 3-5 को।